सुन लो, बात सुन लो, उरिया बात सुन हिस्सा लो, देख रहे हैं, जहां बात उरिया सुन लो, हिस्सा ठीक खुलकर है। नजर आए। ये उरिया हिस्सा देखने यूरोप का गए उरिया, जो ना, उरिया, उरिया हिस्सा। मेरे ख्याल में ठीक ही है। मैं आप बोल लें, आप करें बात में, मुझे नहीं जरूरत है। उरिया क्या होता है? उरिया कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, आप लोग करो, बात करो, आप लोग करो, कोई मसला नहीं है। मैं तो एक बहुत बात बहुत की थी। शुक्रिया आपका। बहरहाल आप मान गए हैं कि उन्होंने पहले इजहार इस बात का किया है कि उनको शौक बड़ा था उड़िया हिस्सा देखने का, मगर उड़िया जब देखा तो उन्होंने कहा कि ओ स्वाद नहीं आया क्योंकि ये पूरी नंगी नहीं है। ठीक उन्होंने है, पहले सही चेक है, भी करवाया चोई साहब से, क्या ये पूरी नंगी है? उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी थोड़ी कपड़े पहने हुए। तो जाहिर सही है। फिर उनका वो पूरा नहीं ना उड़िया तो देखना। ऐसे तो ऐसे फिर उड़िया हरकतें देखने करने के लिए से, फिर और जगह गए, सिर्फ उसका ये जिक्र नहीं उन्होंने आपकी किया। ऐसी हरकतें करने से आप अहमदियों के दिल जीत लेंगे, आप असीलों की रिश्तेदारी करेंगे, ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ आप ਪਾ ਰਹੇ उनको ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ मायल ਕਿਉਂ करेंगे। ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ बहुत ਜੁੱਤੀ अच्छे, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ बहुत अच्छे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ नहीं आए, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੋਲ ਕਰਨ आए हैं। बहुत आला, बहुत 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 आला। आपको समझ आ गई हमारा असल मिशन क्या है? नहीं ही आप ही का ही है, आप ही कोई लेके आए हो मिशन, ये आपकी जमात का तो ये नहीं है। आपकी जमात तो तरले डालती है अहमदियों के, ए मेरे अहमदी भाइयों, ए मेरे भाइयों, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖਲਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, सीधे कहने ए ਮੁਖਾਤਬ कर रहे ਹੁੰਦੇ यो हो। यो जाइयो, इधर आओ, जूतियां हमसे खाओ, भाग भाग कर आओ, जूतियां खांदे जाओ ते लंघदे जाओ ते खंघदे जाओ। ਪਤਾ ਨੀ ਯਾਰ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਸਮੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਜੀ ਯਾਰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ सन। जी ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ, देखिए ਕੋਈ आपने ਕੋਈ ਕੋਈ 250-300 ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ उड़िया ਉਹ हिस्सा देख लिया। ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ मैं ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ बहुत ਹੋ। कोई कमाल ਇਹ कर ਗੱਲ रहे हैं। ਇਹ ਗੱਲ और ਉਹਦੇ कमाल तो ਖੁਤਬੇ 'ਚ फिर ਬਿਆਨ महमूद ਕੀਤੀ ਹੈ। साहब ने कीता सी। ਦੇਖੋ उड़िया ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ हिस्सा ਕੋਈ बुरा देखने नहीं लग रहा एक है, शौकीन मेरे भी साहब ने सी, खुद बयान कीता है। दूसरे वो अपने ईदगाह दे खुतबा च भी दस रहे मैं ने। क्या मिर्जा साहब शौक मैंने हाँ बहुत ये था, उन्होंने खुतबे 'ਚ मौका ਬਿਆਨ मिलिया ਕੀਤਾ नहीं। ਹੈ। ਔਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ तो ਤੁਸੀਂ उड़िया देखने का ਤੌਬਾ मैंने ਪੜ੍ਹਦੇ बहुत ਰਹੋ, शौक सी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਤੇ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ। ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਤਬੇ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਫਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਰੀਆਂ ਦੁਹਰਾਓਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ, ਓਪੇਰਾ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ? ਮਊਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ 'ਚ ਆਗਾਜ਼ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੰਗੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ। ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਐਸੀ? ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ। ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦੀਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੱਜ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਨੰਗੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬੜੇ ਤੇ ਫਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਕਿਆ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਇਹ ਨੰਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਔਰ ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਪਰ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ? ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏ, ਕੇ ਨੰਗੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਨੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਇਹਦੇ ਰਹੇ ਚ ਹੋ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਇਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੇਖਦੇ ਡੈਮੇਜ ਆਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੈਂਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਡੈਮੇਜ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬੀਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਵੇਖਣਾ ਜੱਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਦੇਖਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੰਗਾ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੰਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਕੀ ਗਏ? ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਅੱਛਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਛਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ? ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕਿਹਾ, ਸਕਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲ ਆਦਮੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਗੀ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਣਾ? ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਆਦਮੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝੋਗੇ? ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਥੱਕ ਉਹ ਜਾਓਗੇ। ਚੋਇਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਮਝੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ? मुझे अरसा से ये ख्याल था जब मैंने यूरोप गया, लेकिन हाँ। मौका नहीं था मिल रहा। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਣਾ? उन्होंने लिखा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੜੋ, ਲਗਾਓ ਇੱਥੇ। उरियां हिस्सा यूरोप का ਉਰੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਗੀ तो ਔਰਤਾਂ उरियां कपड़े वाला ਹੁੰਦਾ ਹੁਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਾ ਹੀ ਭਾਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਉਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ? ਤੇ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है कि चौधरी साहब क्या ये नंगी है? वो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, वो बताएं कि ये उन्होंने कहाँ लिखा है कि मुझे नंगी औरतें देखने का शौक है, ये बताओ। अब झूठ पकड़ा गया ना, अब बोलती बंद हो गई है ना, अब पिटाई होगी। अब ये बात मैं बताऊंगा उसको, तो ट्रूथ सीकर को भी। अब बताओ मुझे कहाँ पे लिखा है उन्होंने? ये हर रोज ये बात लेके आते हो। चौहान साहब माइक खोलो तो जी गल है करने वाली वो दसो, ये उन्होंने कितने लिखा मुझे नंगी औरतें देखने का शौक है? मुझे नंगी औरतों को देखने का शौक कहाँ लिखा है? बताओ ना, कहाँ पे लिखा है? और यूरोप का ये कहाँ पे लिखा है उन्होंने? था और मौका नहीं था मिल रहा, तो ये बताओ ना, फिर अब आखिर बताओ कि जब मुझे हम ये कहाँ पेरिस पे लिखा गए, है, वो कौन सी लाइन में है, कौन सी लाइन में, कौन सी पैराग्राफ में है? पढ़ो उसको, लगाओ सामने, देख लेते हैं। बताओ। ये अरसे से ख्याल था कि मैं यूरोप का उरिया हिस्सा देखूं। हाँ, इसमें कहाँ पे लिखा है मुझे नंगी औरतें देखने का शौक है? उरिया ये किसका मतलब है? नंगी उरिया, नंगी का क्या मतलब? उरिया का मतलब नंगी, नंगी औरतें, औरतें किसको लफ्ज का मतलब है? बस शोर पाया तुझे कुछ 6 महीने तो उरिया कितने लिखा है कि मुझे नंगी औरतें देखने का शौक है? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। उड़ियां की होता उड़ियां क्या होता है उरिया का मतलब? क्या होता है? क्या होता है? बताओ क्या होता है? औरत किस लफ्ज का मतलब है? बस बहरहाल इसके फायदा कोई नहीं होता, इस तरह की बातों का इल्मी बात करनी चाहिए, ये हमें शख्सी डैमेज करते हो। अगर नहीं था तो क्यों फिर नंगी औरतें देखने गया? ओए कहाँ पे है नंगी औरतों को तो देखने क्या का शौक? कहा है? गया था ओपेरा में? क्या किया था? क्या किया था ओपेरा में? कुरान पढ़ा था जाके? मुझे ये बताओ कि ये नंगी औरतें देखने का शौक है मुझे, ये कहाँ पे लिखा है? ये बताओ। कम से कम अगर इल्जाम भी लगाना है ना, इनको बात भी करनी है, तो बंदा हवाले से करता है। ऐसे अपना मफहूमन बात नहीं करनी चाहिए, और वो बात नहीं करनी चाहिए जो बाद में साबित ना कर सको। नंगी औरतें देखने गया था कि नहीं? वो बात आप बता कर सकते। मुझे गया बता था दो, कि नहीं? औरत किस पूछा था लफ्ज का मतलब है? साहब क्या ये नंगी है? कहा कि थे कि नहीं? कहा था कि नहीं? कहाँ पे लिखा है मुझे नंगी औरतें देखने का शौक है? बताओ। चौधरी साहब क्या ये नंगी है? पूछा था? इसका मतलब मुझे नंगी औरतें देखने का शौक है? तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? रह गए तुसी मरजाई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगता कि की है? क्या मतलब है? नंगी औरतें देखने गया, उरिया हिस्सा यूरोप का देखने गया, वहां पे नंगी औरतें थी,
उसने पूछा चौधरी ये साहब क्या ये नंगी है? हाँ, तो की है जो क्या वो कटोगे नंगी थी? की कहोगे? क्या बहुत तो शरीफ क्या आदमी है, जवाब दिया चौधरी साहब शरीफ ने? आदमी है जेड़ा ऊपर चौधरी नंगी साहब ने औरतां क्या देखण जवाब गया। दिया? नहीं, क्या चौधरी जवाब दिया साहब ने चौधरी क्या, साहब ने? क्या वो हाँ नंगी थी? देखने में नंगी नजर आती लेकिन छोटे छोटे कपड़े पहने हुए है, उन्होंने क्या जवाब वो देता। नंगी थी? हाँ क्या वो नंगी थी? हाँ, तो भैया किस लिए गए थे फिर उधर? नहीं बताओ ना। और यहाँ वो हिस्सा क्या क्या वो देखना नंगी था? थी? नंगी थी, वो कहाँ पे नंगी थी। ऐसे कहा? बताओ ना, वो क्या वो नंगी थी औरतें जो उन्होंने देखी भी नंगी औरतें? वो स्ट्रिप्टीज में गए थे? कहाँ पे गए थे वो? और वो हाँ, उन्होंने तो कब उन्होंने कहा कि लिखा मुझे होगा, नंगी सारा औरतें पढ़ लो जाके। देखने का शौक है? हाँ, मुझे उरिया हिस्सा देखने का शौक था। चौहान साहब ये तो इसमें नंगी औरतें देखने का शौक है, ये कहाँ पे है? उरिया नंगी को ही कहते हैं ना, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैं की करा औरतें किसको तो। कहते हैं? औरतें 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 कहाँ पे आ गई बीच में? तो कहाँ थी? औरतें जहाँ कहाँ गए पे थे है? वहां कहाँ थे? मर्द थे, मर्द नंगे देख रहे थे। और कहाँ पे है नूरिया मर्द उरिया? नंगे देख रहा मुझे था वहां उरिया पे। हिस्सा देखना है और मुझे नंगी वो औरतें कह देखनी है, रहा है दो यहाँ पे फिर दिख मैंने रहे हैं ना। देखा वो बेशुमार चौहान औरतें साहब हैं थोड़ा जो ब्लड प्रेशर हाई जाहिर हो नंगी गया नजर है, आ रही थी। ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, थोड़ा ब्लड प्रेशर ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਸ ਨੁਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਉਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਨੀ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਓਪੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਰੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦਾ। मैं ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ देखो ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਇਹ ਨੰਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ये- मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? मैं मुझे तो आप जानते की हो। मैं फखर है इसका आपको? मैं आपके नंगी आपका मुस्लिम और इस तरह नंगी का औरतें होता, देखने मेरा गया था। ये मिजाज नहीं है। कहाँ पे लिखा है ये नंगी औरतें देखने गया था? कहाँ पे है ये? ऐसे ही बस अपने सिर गाई जा रहे हो। मेरा ये मिजाज नहीं है कि मैं आपको इसका वापस जवाब दूं आपके भाई जंबा आप साहब के आज ऊपर, का मैं लेकिन मैं ठेकेदार नहीं आपसे हूँ, जो आपका पूछ जो रहा भी हूँ आप मिजाज उसका है। जवाब नहीं दे पा रहे आपने तो अपने मुस्लिम मौद को जो जनाकार था, बदकार था, कातिल था, शराबी था, सारा कुछ था वो, आप उसको डिफेंड करेंगे क्योंकि जो हमारा मुस्लिम मौद है उसने अपने मामू आप का जो कत्ल किया, इल्जाम मीर लगा साहब रहे का हो कत्ल किया, वो उसने लिखा नहीं ना हुआ, अपनी वो बीवी का लिखा नहीं कत्ल ना किया, हुआ। अमतुल हई का कत्ल किया, उसने अपनी बेटी से देखो जना कहाँ किया पे अमतुल जंप रशीद लगा से, गए हो, उसने किसे अपने जंप साले लगा गए हो उनसे? अब्दुल हई का कत्ल किया। कातिल भी था, जनाकार भी था, बदकार भी था, शराबी भी था। लेकिन आप कहेंगे नहीं हमारा तो मुस्लिम मऊद था, वो ये काम नहीं कर सकता। अब्दुल करीम मिस्त्री की बहन उठा के ले गया, सकीना के साथ जना किया, उसने मोबाइल का चैलेंज दिया, वो मिर्जा महमूद भाग गया मुखन्नस की तरह। मोबाइल नहीं उसने किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानी था। कहाँ कहाँ आप उसको बचाएंगे आप? जी चौहान साहब बोलते बंद हो गई। गल नहीं करिया करो। नहीं मैनू टेलीफोन एक आ गया सी। हाँ, और भाई बात ये है कि आपका टेलीफोन मुस्लिम पे यही मऊद कहा एक है कि बदकार चौहान और साहब जनाकार इंसान था, और आपने उसको ये मुस्लिम मऊद आप बनाया हुआ है। ये बुग़्ज़े मुस्लिम मऊद में आप इस तरह की बातें करते हो क्योंकि ये आप आपके लोगों बेशरम के लोग हैं पल्ले कुछ अमीरजाई। भी नहीं है वो उसमें। आप सारों के लोगों साथ के जना कर पल्ले रहा है, कुछ नहीं लेकिन है। आप इतने आपने बेशरम हैं। वो बुग़्ज़ ऐसा मुस्लिम बदबख्त मऊद है, बनाया आपने। अपने बाप को कह रहा है कि वो शराबी था, रंगीन मिजाज था। चौहान साहब उन्होंने ऐसा कोई नहीं बेटा कहा, है को उन्होंने कहता है नहीं ये? कहा, उन्होंने नहीं कहा ये ऐसा ये झूठ अल्फाजल में मत लिखा है, बोलें डीजी आप। खोसला की अदालत और में नहीं बयान दिया कहा है ना, नहीं कहा कि उन्होंने, नहीं उसे कहा। रंगीन मिजाज कह जाते, उसने आप शराब झूठ पी बोल थी। रहे हैं, आप झूठ बोल रहे झूठ हैं। बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे मुस्लिम मऊद हैं, ने ये नहीं झूठ कहा। बोल रहे अभी हैं। आपसे मैं उसका हवाला मांगूंगा, आपसे नहीं दिया जाएगा और वो नाम बात निकलेगी। अभी जो आप बयान के अंदर फंस जाओगे, मैं आपको दोबारा ये पूछूंगा कि वो निकालो, हम वो पढ़ेंगे, फिर फंस जाओगे। 2 दफा पहले फंस चुके हो और बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हो आगे से, आप उस भाई पे आप तो जो है बड़े वो बेहया बिल्कुल मिर्जाई ना, हैं। अब आपके शर्मिंदा होने की आपके बजाय खलीफे बल्कि आप ढीठ हो मुखन्नस गए हो। हैं, वो मैं सही बता उनको रहा हूँ आपको, चैलेंज भी दिया अब उल्टा जाए आप वो ढीठ हो घुस गए उस जाते बात हैं, पे ना। रोटियां चेक करना शुरू हो जाते हैं। ये देखा, आपके अब खलीफों का उधर हाल से है। आप निकल गए। आपका चलो मिर्जा अब ये बात महमूद करते हैं, जो था वो निकालो वो जरा। जानी भी था, शराबी चलो भी अब था, वो कातिल निकालो, भी था। वो निकालो। चले वो बात निकालने जरा आपके कातिल भी था, मुस्लिम शराबी मऊद भी ने। था। अब्दुल करीम मुस्लिम मऊद मिस्त्री ने की बहन को कहाँ उठा कहा के जना है? कर लिया, फिर चलो उसको कत्ल ठीक है, करने की कोशिश बना की। फिर कातिल जो था उसको कहने लगा कि यार ते बहिश्ती मकबरे च दफन होएगा, ते बहुत ही नेक इंसान देखो था, मैंने कत्ल किधर किया है। जंप लाते हो, ये सारी किधर आपकी जाते हो, बदमाशियां हैं। लेकिन जंप मिर्जाई ला ऐसे के कदी बदबख्त किधर हैं, कदी कोई इन किधर। बदमाशियों पे उनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਗੇ 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, 2 ਵਾਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ईदगाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ कि मुझे उरियां हिस्सा देखने का बड़ा शौक था, आखिर एक मौका मिल गया एक मैं दफा। मैं तो किहा कि जफरुल्ला ਜਿਹੜੀ खान मैं मुझे ਗੱਲ ले गए ਪੁੱਛੀ है पेरिस, ना, तो वहां पे मैं औरतें हल थी जो की नंगी जी। नजर आ रही थी। मैंने कहा चोई साहब क्या ये नंगी है? तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ हाँ है ही जी, नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ देखो ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾਈ। देखो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਲੀਫੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬॉय ਨੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਕਰ ਪੇ ਜਾਓਗੇ ਬॉय ਜਨਾਬ ਨੇ, ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਡੀਐਨਏ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਵੀਆਂ ਮਊਦ, ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚਲੋ ਮਹਿਮੂਦ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਡੀਜੀ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਲਫ। ਦਿਖਾਓ ਕੱਢੋ, ਲਾਓ ਤੇ ਲਾਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ओके। ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਦੇਖੀਏ 28 ਸਹੀ। जनवरी 1924। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਨਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। मिर्जा ਇਹ साहब, ਗੱਲਾਂ मिर्जा ਸਿਰਫ महमूद ਕਰਨ ने क्या है, ਵਾਸਤੇ, मेरा ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। उसने शराब पी थी, वो रंगीन कभी मिजाज नहीं कहा कैसे थी? उन्होंने, कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं उन्होंने कहा। कहा हुआ है, ये अगर अल-फजल ना में लिखा कहा हुआ हो, है। अच्छा यार मैं रुको, आपकी बात रिकॉर्ड करके ना अल-फजल आपको में मैं लिखा जरा हुआ है। फिर ठीक से आपसे बात कर ही लें। रुको जरा, अभी आपने मुझे ये फिक्रा बोला है कि मिर्जा साहब ने कहा है कि मेरा बाप जो है वो शराब पीता था और उसको रंगीन मिजाज कह सकते हैं, ये हाँ, आपने कहा है। ठीक ठीक है, मैं ये फिक्रा आपका महफूज कर लूं। महफूज कर लें इसको, और इसकी छोटी छोटी बत्तियां ठीक बना है, के अपने घर में झंडियां बना के लगा लें। चलें चौहान साहब, अब जरा आप ये फिक्रा दोबारा बोलें। फिक्रा आपका ये है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब मुस्लिम मऊद ने ये कहा है कि मेरा बाप यानी कि मसीह मऊद शराब पीते थे और उनको रंगीन मिजाज कह सकते हैं। ये फिक्रा बोलो दोबारा। नहीं, मैंने बोल दिया है, अब मैं अब बोलो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो बोलो फिक्रा, मैं इसको रिकॉर्ड करके ये बाद में मैं आपसे इसका तो हवाला वो मांगता हूँ। शराब बोलो, पीते थे और वो उनको रंगीन मिजाज कह सकते हैं। डीजी खोसला की अदालत में बयान ये किसने कहा है, मिर्जा महमूद ने। क्या कहा है, क्या कहा है, किसने कहा है, कब कहा है? फिर वही बात क्या कहा है? दोबारा। बताओ क्या 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 वो शराब क्या, अब चले ऐसे कर लेते हैं, जरा खोल के बात करते हैं, कल को आप मुकरे ना। क्या मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने ये कहा है कि मेरा बाप शराब पीता था और उनको रंगीन मिजाज कह सकते हैं, क्या ये कहा है उन्होंने? जी जी, जज़ाकल्लाह। ले जी, ये बात अब रिकॉर्ड हो गई है। ये चौहान साहब ने 3 दफा ये बात की है और लोगों ने भी सुन लिया, मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा चौहान साहब, अब मुझे आप बताएं वो कहां पे कहा है? चौहान साहब अब दिखाएं कहां पे कहा है? चौहान साहब, चौहान साहब अब दिखाओ कि कहां पे कहा है। अभी जो बयान दिया है भारे सबूत आप पे है, ये मुझे दिखाओ। ये मैं बिल्कुल है डिनाई करता हूं मुअर्रखा कि नहीं कहा। 15 जून 1935। जी पढ़े। ये अल-फजल है, इसमें लिखा हुआ है कि मालूम होता है कि मिर्जा एक टॉनिक इस्तेमाल किया करता था जिसका नाम प्लूमर की टॉनिक वाइन था। ये कौन कह रहा है? और सुन ले यार पहले। और एक मौका पर उसने अपने एक दोस्त को लिखा कि वो लाहौर से ख़रीद कर उसे भेज दी। मौजूदा मिर्ज़ा ने खुद एतराफ़ किया है कि उसके बाप ने प्लूमर की टॉनिक वाइन एक दफ़ा इस्तेमाल की थी और वो एक ऐसा इंसान था जिसे रंगीन मिजाज कह सकते हैं। फिटे ठीक है, अभी ये कौन कह रहा है? मिर्जाइयत दा ये कौन कह रहा है? फिटे मुंह करने या ठहर जो उन फिटे मुंह किधर जाएगा पता लग जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? ये डीजी खोसला का बयान है। डीजी खोसला की अदालत में ये कादियां कौन कह रहा है? ये डीजी खोसला बता रहा है कि ये मिर्जा महमूद ने बयान दिया।
ये हाँ डीजी हाँ, खोसला कह रहा मौजूदा है, मिर्जा मिर्जा साहब ने नहीं कह खुद रहे हैं। एतराफ किया आपने मुझे है दिखाना है। कि उसके ओ बाप भाई, ने प्लोमर की टॉनिक भाई वाइन एक दफा ठहर इस्तेमाल जो, की थी और वो ठहर एक जो, ऐसा इंसान था जिसे रंगीन ठहर मिजाज जो, कह ठहर सकते जो, हैं। ठहर जो। फिट है मुतवाडे मुस्लिम अपने मुद्दा। देखो देखो चौहान साहब, ये इस तरह फिटे मुंह करने से आपकी बात साबित नहीं तो हो फिर जाएगी। मुंह नहीं करेंगे। आपने जो अब आपको जो चौहान ये कह साहब, रहा है कि वो रंगीन मिजाज है, चौहान वो तो साहब, फिटे मुंह चौहान करेंगे ना, साहब, और की करेंगे। मैंने आपसे वो तो मैंने गले च आपसे जुत्तियां दे हारी पावेंगे डिमांड ना। की थी। चौहान साहब, मैंने आपसे डिमांड की थी 15 कि जून मुझे ये 1935। दिखाएं कि जहां पर मिर्जा साहब ये कह रहे हैं, क्या तो दिखा रहे हो अल कि दारुल डीजी अमान खोसला ने कादियान, कहा। ओ भाई अल ठहर जा, फजल ठहर दारुल जा। अमान कादियान 15 और जून डल फजल 1935। ठहर ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, पहली दफा नहीं पढ़ रही है। आपको मैंने कहा था, आपका फिक्रा मैंने एक रिकॉर्ड किया है। आपको मैंने कहा था कि क्या मिर्जा साहब ने ये कहा है, आपने कहा नहीं कहा, मौजूदा मैंने कहा मिर्जा जी ने दिखाओ। खुद अब एतराफ किया आपने है अब आपने कि क्या आगे उसके से मुझे बाप पेश ने किया है। प्लोमर की टॉनिक आपको वाइन एक पता है दफा आपने क्या इस्तेमाल की क्या थी अभी बोंगी मारी है। और वो एक ऐसा इंसान था। और बोंगी तो आपने क्या मृदाई अभी मारते हैं, बोंगी मैं तो नहीं मारी मार है। रहा। मैं बोंगियां अभी तो आप मार रहे आपसे हैं। अभी बेशर्मी की सब इंतहा सामने है। मारी है आपने, सारा अभी कुछ अभी आपको मारी सबूत है, भी दे रहे हैं। अभी ਤੁਸੀਂ मारी है ਐਡੇ और वो ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ। रिकॉर्ड हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ अभी ਗਿਆ, ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ अभी ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ आपकी ਹੋ ਗਿਆ। बोंगी रिकॉर्ड हो ਫਿਰ गई ਕੀ ਹੋ है। ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। अभी आपकी ਫਿਰ बोंगी ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ अभी ਇਲਜ਼ਾਮ आपकी ਲਗਾਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ बोंगी ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। बोली जाओ, बोली जाओ, बोली जाओ। बोली ऐसा जाओ, बोलने बोली से जाओ। क्या सच्ची हो जाओगे? सच्ची हो जाओगे बोलने से। मौजूदा मिर्जा आपसे ने मैंने खुद एतराफ मुतालबा किया किया। है कि उसके ओ बाप ने भाई, प्लोमर की टॉनिक वाइन एक दफा इस्तेमाल की थी और वो ये एक किसका ऐसा बयान इंसान है? था ये जिसे बयान रंगीन मिजाज किसका है? कह ये सकते हैं। बयान चीडी खोसला का है। हाँ जी, और ये अल फजल आपसे मैं कादियान दारुल अमान आपसे 15 जनवरी हाँ, 1935 में शाया हुआ है। अभी भी शर्म नहीं आई आपको? अभी भी आपको शर्म नहीं शर्म आ आई रही? है कि वो अभी एक भी कोई खबीस शर्म नहीं इंसान आ रही अपने ना। बाप को ये कह रहा है। देखो, एक खबीस अभी भी शख्स, एक आपको खबीस बेटा, नाखल्फ बेटा अपने बाप के मुतालिक ये बयान दे रहा है कि देखो, उसने अभी भी टोनक आपको वाइन इस्तेमाल की कोई थी, शर्म। उसे रंगीन मिजाज कह सकते हैं। कोई शर्म आई है? बड़े बेशर्म हो मृदाई। खलीफा मुखन्नस, एक खलीफा बदकार मैंने आपसे जानी, मुतालबा किया था, और जहां एक से मैंने खलीफा आपको 3 अपने दफा बाप से आपसे इल्जाम ये लगा क्या रहे होगा हैं। इससे? एक वो नंगी वो औरतां दा कब देना है शौकीन मुझे है। हवाला कि मिर्जा दूजा कहता है साहब ने वो कहा मुजद्दद हो? का जिक्र ना कुरान में ना हदीस में। वो कहता है तुमने खुद पेश वो किया क्या था, हवाला कब देना है? तुमने खुद पेश किया था, ये करने से क्या होगा? ऐसी बातें करने से क्या तुमने हो खुद जाएगा? पेश ये किया जो था। आप मैं बात आपकी पकड़ता हूँ, हाँ जी, आप उसमें झूठे तो निकल रहे मैंने हो। तो जवाब दे दिया, 3 बातें आपकी पकड़ी है, मैं आपको तीनों हवाला में भी दे फारिग हो दिया, गए हो। पढ़ के भी सुना दिया। फारिग हो गए जे भाई, तुसी फिटे भाई मुंह फारिग हो गए हो। नहीं शर्म आंदी तो मैं जिम्मेदार हूं। भाई इल्मी जे दुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ में शर्म नहीं फारिग हो, आंदी तो फारिग मैं हो। जिम्मेदार हां। चौहान साहब, जे ਤੁਹਾਨੂੰ इल्मी शर्म नहीं आंदी तो दुनिया जिम्मेदार में मैं हां। आपका हवाला भी मैं फारिग। ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म दिलाने ਦਾ जिम्मेदार हां। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ के सुनाया, ਤੁਹਾਨੂੰ आपको कोई पता है शर्म आपने क्या आई है? हरकत की है? आपने ये हरकत की है। मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आपने आपको कोई शर्म आई है? आपके अल-फज़ल में लिखा हुआ है। ये नहीं आप कि जाहिल ढीठ हो मुखालिफों गए ने हो यार, असल इल्जाम में नहीं लगाया, करते रहो। आपके अपने अल-फज़ल में लिखा हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਢੀਠ ਹੋ और ਗਏ ਹੋ, वहां पे ਤੇ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਈ ਕਰੀ ਜਾ ਢਠਾਈ ਰਹੇ ਹੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਢੀਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢੀਠ। ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਢੀਠ ਕੀਤਾ ਕਹਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨੰਗੀ ਕੀਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਡੀ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ हाँ ਕੋਈ ਯਾਰ हाँ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਖੋਸਲਾ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜੀਡੀ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ गलत deny किया है। ਕੀਤਾ ਜੇ, किते ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ deny मुकदमा ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀਡੀ ਜੀਡੀ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ। ਖੋਸਲਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ गलत किया है। ਹਾਂਜੀ, ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਡਿਨਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। 'ਚ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਡਿਨਾਈ ਚ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਛਾਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਉਹ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਡੀ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ जनवरी ਛਾਪਿਆ ਹੈ। 1935। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ किसने ਨਾ रिकॉर्ड ਛਾਪਦੇ। की थी? ਔਰ अल-फज़ल ने रिकॉर्ड की हुई है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ मिर्जा ਇਲਮੀ महमूद ਦੁਨੀਆ ने ਦੇ किया ਵਿੱਚ है, मिर्जा ਤੁਹਾਡੀ महमूद ਇਹ ने किया दलील भी है फारग, कि मेरे हवाला भी बाप ने फारग, ਤੁਸੀਂ ਵੀ प्लोमर की फारग। टॉनिक वाइन एक दफा इस्तेमाल की थी और वो एक ऐसा इंसान था जिसे रंगीन मिजाज कह सकते हैं। ये कहाँ पे कहा ये है इसने? मिर्जा महमूद का बयान है ना, दिखाओ, उन्होंने दिखाओ कहाँ इसमें पे लिखा बयान है? हुआ है। मौजूदा मिर्जा ने ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕੱਲ ਆ ਜਿਓ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੰਗ ਲਓ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਐਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ,
ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।